We're shifting our focus now to Uttarakhand. At least 14 people died and 10 were injured in heavy overnight rains that triggered flooding and a house collapse as several rivers swelled in Uttarakhand. Now, an official statement has been issued where the Uttarakhand government says that the centre has dispatched 2 Indian Air Force helicopters, Chinook and an Mi-17 to aid the rescue operations in the state. Kedarnath Yatra was also suspended amid the inclement weather conditions as the heavy downpour triggered landslides at many places. The trek route remains blocked by boulders at Ghoda-Padav, Lincholi, Badi Lincholi and Bhimbali. Now, Prime Minister Narendra Modi is also keeping an eye on the situation arising due to the heavy rains and disaster in Uttarakhand. Sources tell Times Now that the Prime Minister is taking stock of the situation. The Prime Minister and in fact the Home Minister both have been speaking to the state chief ministers, assuring all help and assistance. Prime Minister Narendra Modi is keeping an eye on the situation arising due to heavy rains and disaster in Uttarakhand as well. The Prime Minister's office took stock of the entire situation. Indian Air Force Chinook Mi-17 also dispatched for rescue and 3 tankers of ATF have also been sent on the request of Chief Minister Pushkar Singh Dhami of Uttarakhand. The PMO once again assuring that all necessary assistance will be provided by the centre. Our colleague Abhishek Sinha joins us over the phone line with the details. Abhishek, what is the situation? There are fears that several people still continue to be missing. The Prime Minister's office has taken note. What are the details? देखिए, कल जैसा कि कल से रेस्क्यू चल रहा है और लगातार रेस्क्यू की जो टीम है उसका जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। पहले 2 मिसिंग थे लेकिन अब तकरीबन 7 मिसिंग हैं और अब जो नया आंकड़ा आने वाला है वो शायद बढ़ा हुआ हो। मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ में अभी भी हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं जिन्हें 2 पार्ट्स में अब डिवाइड किया गया है। अब Mi-17 और चिनूक हवाई हेली से उन्हें अब रेस्क्यू किया जाएगा। जो लिंचोली एक जो जगह पड़ती है बीच में जहां कुछ श्रद्धालु फंसे हुए हैं जिनकी हजारों की संख्या है, 2 से 2.5 हजार अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां लोग फंसे हुए हैं। उन्हें बाबा केदार के मंदिर पे ले जाया जाएगा और वहां से चिनूक और Mi-17 के जरिए उन्हें यहाँ रेस्क्यू किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लौटेंगे आपके पास समय समय पर अपडेट्स के लिए। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। मूविंग ऑन, इन ऑलमोस्ट अ रिपीट ऑफ लास्ट ईयर्स मॉनसून डिजास्टर, क्लाउड बर्स्ट, फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स caused major havoc and devastation across Himachal Pradesh on Thursday. So there are at least 2 people who have died. Over 50 people have gone missing. Scores of houses and hydro projects have been damaged and several roads including the Chandigarh-Manali and Manali-Leh highways have been blocked. जहां हमको ऐसा लगता है कि प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे कुछ हमको मिल सकता है, कोई ह्यूमन बॉडी मिल सकती है या कोई आदमी वहाँ फंसा हो सकता है, कोई उसको हेल्प चाहिए, तो आज हमने ड्रोन सर्विलेंस जो है लो हाइट पे और 2 किलोमीटर हाइट पे भी की, जिससे हमने जूम करके और उस तरह के एरियाज़ को जो है उस सर्विलेंस में डाला। लेकिन जो हमारी ये समेत जो इसका जो रिवर का शेप बन गया है, ये 6 किलोमीटर का जो एरिया जिसको आज हमने कंटूर किया और डिवाइड करके सर्च करने की कोशिश की, उसमें हमको कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिली है। ड्रोन के माध्यम से ये होता है कि हम ऐसे इनएक्सेसिबल पॉइंट पे भी चले जा सकते हैं जहाँ ह्यूमन एक्सेस नहीं है और बड़े क्लोज व्यू से जो है उस जगह का पिक्चर लेके, फोटो लेके और लाइव भी उसको देख के ये आइडिया लगा लेते हैं कि यहाँ पे हमको कुछ मिलने की संभावनाएं नहीं है। हमारी NDRF एक पर्टिकुलर स्ट्रेच में, एक में इंडियन आर्मी, एक में CISF, एक में ITBP, एक में हिमाचल पुलिस, एक में हिमाचल होम गार्ड, ये सब चीज़ें हमने एरिया बांट के इसकी बहुत स्कैनिंग की है। तो इसमें फ़िलहाल स्ट्रेच में कोई बॉडी रिकवर हो नहीं पाई है और इसमें ड्रोन के माध्यम से भी SP साहब ने एक बड़ी डिटेल एक्सरसाइज की थी वो, लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं है। इस जगह में जो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, यहाँ पर एक जो रोड इसको लिंक करती थी वो पूरी वॉश आउट हो गई है। इसमें यहाँ पर 25 लोगों के जो घर हैं वो पूरी तरह से अब यहाँ पर विजिबल नहीं है। 5 घर जो बचे हैं वो आप सामने देख सकते हैं, पार्शियली डैमेज हो गए हैं। उसमें काफ़ी हद तक वो जो मलबा वलबा चला गया उसके अंदर। तो यहाँ पर सुबह 2 लोग फंसे थे जिनको NDRF की टीम ने हमारे रेस्क्यू करके वहाँ से निकाल के भी लाया। बाकी उनके फैमिली मेम्बर जो थे वो पानी में बह गए हैं।